Welcome back to Tech Orbit channel. The I think in yesterday lecture I taught to you all about the lookup function. Okay, so we practice with that. I will upload some assignment and something. So practice with that. In today's session, I will start data cleaning. How we can do data cleaning in Excel. Okay, so this is the most important part of the data analysis, or we can say this is the second part of the data analysis. When we found the data, so we need to clean the data, then we can do analysis with the data. Okay, सो हम डाटा क्लीनिंग पार्ट पढ़ेंगे, बट सबसे पहले हम ये सारी चीज़ें समझ लेते हैं कि डाटा क्लीनिंग में कितने स्टेप्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें चेक करके चलनी चाहिए, ठीक है ना। सबसे पहले हम समझते हैं, जब डाटा क्लीनिंग की बात आती है, सपोज हमारे पास डेटा है, सबसे पहले उसमें डेटा में हमको क्या देखना चाहिए। सबसे पहले तो हमको देख लेना चाहिए कि वो सारे कॉलम्स हैं, वो सारे कॉलम्स प्रेजेंट हैं उस डेटा सेट में जिसकी हमें नीड है, जिससे हमें एक्यूरेट रिजल्ट मिल सकता है। ओके, जब हमने वो कॉलम्स हमने देख लिया कि हाँ सारे कॉलम्स प्रेजेंट हैं, देन नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा वो उन कॉलम्स के डाटा टाइप्स चेक करना। पहला पार्ट होता है डाटा क्लीनिंग का, चेकिंग डेटा टाइप्स। ओके, नाउ अब हम समझते हैं डेटा टाइप्स को चेक करना क्यों इंपॉर्टेंट है, व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट, व्हाई नीड टू चेक द डेटा टाइप्स इन डेटा क्लीनिंग। सो फर्स्ट थिंग, it's make the data accuracy. Okay, suppose if you trying to sum a column of a number, but one of the number is entered as a text. Okay, means suppose there's a 5 but in numbers it's entered as a this. Okay, so Excel will ignore that text entry and leading to an incorrect total. Okay, so that's why we need to check the data types. Now for analysis and reporting also it's very important. Why? Take an example. If you are creating a line chart to show trends over time, but your dates are formatted as texted. Okay, Excel may not plot the point in the correct order, or it might not recognize the text as date at all. Okay, so leading to a misleading or a blank chart. Okay, suppose there is a date. Okay, but in Excel it's right like that in a text format. So maybe in line chart it will not recognize this text date. Okay, now checking data type is good for compatibility with function and formula. Suppose if dates are formatted as text, Excel will sort them alphabetically rather than the logically. Okay, so mixing up the order of event or data types crucial for a time series analysis. Okay, so this is the most important thing. So you have to check the data types before start data analysis. Okay, now how you can check the data types. So there is a lots of types you can check data types. First, you can check data types of any column using type function. Using type function, you can check the data types. How? Suppose there is any column and you wrote that column value type and selected that value and drag and drop. So how you will identify this data type is number, this data type is this data type is. So there is a one thing, when you use that type function. Okay, so if that type function is returned 1, so that means it is something numeric, it is something integer, it is something date, it is something time, और it is something empty cell. ओके, अगर ये टाइप फंक्शन हमारा 1 रिटर्न कर रहा है उस वैल्यू के साथ, तो वो तो या तो न्यूमेरिक हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, डेट टाइम एम्प्टी सेल हो सकती है। अगर वो 2 रिटर्न कर रहा है, इसका मतलब वो टेक्स्ट है और स्ट्रिंग है। ओके, अगर वो 4 रिटर्न कर रहा है, सॉरी 3 नहीं, 4 रिटर्न कर रहा है, इसका मतलब वो उसका डाटा टाइप बुलियन है और लॉजिकल है, ठीक है ना। और अगर अगर 16 रिटर्न कर रहा है, तो इसका मतलब उस जगह कोई एरर है, वो कोई भी डाटा टाइप नहीं है, वहाँ पर कोई एरर है। अगर 64 रिटर्न कर रहा है, तो मतलब कि वो कोई अरे है। अरे मतलब कि इस तरह से लिखा हुआ है, मतलब किसी का नेम लिखा हुआ है, फिर कॉमा, फिर किसी का नेम, फिर कॉमा, फिर किसी का नेम। अगर इस तरह से एक कॉलम में ऐसे वैल्यू है, तो इसका मतलब वो अरे है, ठीक है। तो अब समझ में आ गया कि हाँ ओके, हम डाटा टाइप ऐसा चेक कर सकते हैं, हम टाइप फंक्शन का यूज कर सकते हैं और हम डाटा टाइप पता चल जाएगा कि ये कौन सा डाटा टाइप है, ठीक है। अब हम देखते हैं डाटा टाइप। अब हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, चलो। तो ये मेरे पास एक डाटा सेट है। ओके, ये मेरे पास एक डाटा सेट है और इसमें हम तुमको ये टाइप फंक्शन का यूज करके हम बताएंगे, ठीक है ना, कि कैसे। ओके, सो हम यहाँ पर टाइप फंक्शन का यूज करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये प्राइस वाले कॉलम का, कि प्राइस वाले कॉलम में क्या डेटा टाइप है। ओके, सो टाइप, इसको सिलेक्ट किया, तो आपके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, हमने क्या बताया था, 1 आना चाहिए नंबर के लिए। इंटर दबाया, 1 आ गया, देखो आया 1। सो ये 1 आ गया, इसका मतलब कि इसका डेटा टाइप 1 है।
ठीक है ना। अगर तुमको चेक करना है कि हम स्क्रॉल करके कैसे चेक करें कि यार इसमें क्या है, इसमें 1 ही 1 है सारे में कि और भी कुछ आ गए हैं, तो ऐसा करो, फिल्टर अप्लाई करो, एंड फिल्टर अप्लाई करने के बाद यहाँ पर आओ, यहाँ पर चेक करो। अगर 2 भी होगा, अगर 4 भी होगा तो यहाँ पर दिखेगा, बट यहाँ पर सिर्फ 1 दिख रहा है तुमको, तो इसका मतलब सिर्फ 1 ही 1 है पूरे में। ठीक है ना। तो ये तुम यूज कर सकते हो। ठीक है। चलो, अब आते हैं, अब हम देखते हैं इस वाले नंबर, इसमें देखते हैं कि इसमें हमारे इसमें क्या, इसका क्या होगा। ठीक है ना। सो हमने लिखा टाइप। एक बहुत ही सिंपल तरीका है डेटा चेक करने का, डेटा टाइप चेक करने का। सी, 2 आया, 2 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, 2 का मतलब क्या हुआ कि एक टेक्स्ट है या स्ट्रिंग है, कुछ भी है। ठीक है ना। तो ये आ गया, ये 2 हो गया। इसका भी सेम है, अगर तुमको चेक करना है कि 2 ही है या फिर और भी है, तो फिल्टर अप्लाई कर दो, एंड फिल्टर अप्लाई करोगे तो वैसे ही पता चल जाएगा 2, सिर्फ 2 ही है, मतलब सिर्फ पूरे में टेक्स्ट ही है। ठीक है। सो ये डिफरेंस होता है, ऐसे तुम बहुत सारी चीज़ें यूज कर सकते हो, पता कर सकते हो कि क्या है उसका डेटा टाइप। ठीक है ना। ओके। तो अब हम चलते हैं, अब सपोज हमारे पास डाटा टाइप्स हमने पता कर लिए, किसी का डेटा टाइप मैच नहीं करता है, देन दैट टाइम हम क्या करेंगे। ठीक है ना। हम वो डेटा टाइप्स को कैसे हैंडल करेंगे, हाउ वी हैंडल दैट डेटा टाइप्स। ओके, सो वेट। ओके, सो देयर इज अ लॉट्स ऑफ मेथड टू हैंडलिंग द डेटा टाइप्स। ओके, पहला पहला मेथड होता है, पहला मेन मेन जो होता है कि वो हम डेटा टाइप कैसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है। सो फर्स्ट थिंग तुम कर सकते हो, यहाँ से डेटा टाइप चेंज कर सकते हो। कैसे, सपोज ये है, तो इसको मान लो मैंने क्या किया, यहाँ पर आके मैं इसको क्या करती हूँ, टेक्स्ट कर देती हूँ। मैं आप आपके हिसाब से मैं इसको टेक्स्ट कर देती हूँ ना। आप चेक कर लेते हैं इसको, टाइप 2 आना चाहिए, सॉरी 2 नहीं आया, ये टेक्स्ट ही तो बन गया है। चलो इसको हटा के ऐसा करती हूँ। ठीक है, इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देती हूँ। ठीक है ना। इस वाली रो को मैं टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देती हूँ। ठीक है ना, टेक्स्ट। बहुत टिपिकल है सब चीज़ें। ठीक, ये 3 जो है, जब टेक्स्ट स्टोर हो चुका है, ये 2 आ गया है। ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, हम एक चीज़ करते हैं, हम एक सिंपल से तरीके से हम देख लेते हैं कि हम कैसे इसका डेटा टाइप हम चेंज कर सकते हैं। सपोज यहाँ पर पूरे में हमारे पास वही है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम रेंज सेलेक्ट करेंगे। रेंज सेलेक्ट करने के बाद हम कंट्रोल एल करेंगे। सो ओके, रेंज सेलेक्ट किया, रेंज सेलेक्ट करने के बाद हम फॉर्मेट, रेंज सेलेक्ट किया, रेंज सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, फॉर्मेट सेल में जाएंगे। फॉर्मेट सेल, देयर इज अ मेन्यू एंड देयर विल बी अ फॉर्मेट। यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आने के बाद हम फॉर्मेट सेल में जब आ गए, होम टैब, दैट एरिया एंड दैट फॉर्मेट सेल। ठीक है ना। फॉर्मेट सेल पे आ गए, अब यहाँ पर हम अपना डिजायर जो भी तुम चाहते हो चेंज करना, वहाँ से हम सिलेक्ट कर लेंगे। हमको नंबर सेलेक्ट करना है, हमने नंबर सेलेक्ट किया, नंबर कैटेगरी। ठीक है ना, कैटेगरी हमने नंबर सेलेक्ट कर दी। ओके, एंड देन ओके कर देंगे। इसको सेलेक्ट किया, नंबर सेलेक्ट किया, हमको डेसिमल नहीं चाहिए एक भी, हमको डेसिमल एक भी नहीं चाहिए। ठीक है ना, हमको डेसिमल नहीं चाहिए, एंड मैनी मोर थिंग हम चेक कर लेते हैं। नो, ठीक है, यही तो हमने किया। अब देखते हैं क्या इसका डेटा टाइप चेंज हुआ है। टाइप
ये बहुत बहुत ज़्यादा टिपिकल लगता है मेरे को सब चीज़ हैंडल करना, सीरियसली। इसको चेंज कर दिया है हमने एज अ नंबर, बट स्टिल ये शो कर रहा है कि ये चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि आई डोंट नो ये ऐसा बिहेव कर रहा है कि ओके ये रहा, यहाँ पर गए फॉर्मेट सेल पे आए नंबर, एंड हमको डेसिमल प्लेस नहीं चाहिए, जीरो चाहिए, एंटर किया, ठीक है ना। देन हम लिखेंगे टाइप, टाइप लिखने के बाद सेलेक्ट किया, वन आ गया, ओके। सो ऐसे हम यहाँ से भी डाटा टाइप चेक कर सकते हैं। जब यहाँ से भी चेंज नहीं हो, यहाँ से भी डाटा टाइप आपका चेंज ना हो, देन हम क्या करते हैं, हमारे पास एक अल्टरनेटिव मेथड होते हैं बहुत सारे। पहला अल्टरनेटिव मेथड होता है पहला अल्टरनेटिव मेथड होता है, हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे और वो स्टेप आप फॉलो करना, ठीक है ना। सबसे पहले आपको कहाँ पर जाना है, सबसे पहले आपको इंटायर कॉलम सेलेक्ट करना है, ठीक है ना। इंटायर कॉलम सेलेक्ट कर लेना है। इंटायर कॉलम जब आप सेलेक्ट कर लेंगे, देन आपको डाटा टैब में जाना है। डाटा टैब में जब जाएंगे आप, तो आप एक देखेंगे डाटा टूल, डाटा टूल में जाएंगे आप, ठीक है। आप क्लिक करेंगे टेक्स्ट टू कॉलम, टेक्स्ट टू कॉलम में जब आप ओपन होगा, ठीक है ना, टेक्स्ट टू कॉलम विजार्ड जब ओपन होगा, तो वहाँ पर आपसे पूछा जाएगा डेलीमीटर या फिक्स्ड विथ, ओके। सो यू कैन चूज अकॉर्डिंग टू योर। सो ये बेसिकली ये मेथड क्या करता है, ये अल्टरनेटिव मेथड ये क्या करता है, ये if there will be a number, if there will be a text, okay, text to column, text to column what will do, text what will do, it will convert its number as a number, okay. Text to column alternative method will convert text to as number, okay, and it's also format as date, okay. So I will show you it. Suppose wait, suppose I change with that text, okay. Very difficult thing I'm doing, I don't know. Okay, text, okay, I'm changing that text. I don't know it's changed or not, but let's hope. Okay, so I changed with text. Now what is that steps? First we have to go the data tab, so we come in the data tab. Then next we have to go the data tool, so data tool, okay, we came here, data tool. Now there is a text to column, okay, text to column here, okay. So first we have to select the whole column, then select the text to column. When we selected the text to column, what it's saying, it's saying delimited or a fixed width, okay. So comma, I told you nothing, tab only, and the okay. And here when you came, it can convert that number into text, and it can convert the number into date time, okay. So suppose you click here, and when you did finish, so all numbers it's converted as a text, okay. All number is converted as a text. Now you got it. Sometimes what happening, you are written as a text, but somehow it's changed as a number, so you can change. The alternative method is, you can, using text to column, you can convert all the number into text, okay. Now okay, then second alternative method is that, if suppose this is text, okay, now you want to convert in number, so second you can use the value function. When you change, so you just enter this, why don't working, I'm inserting the text only, why it's not working, okay, wait, here I will do, don't know what's happened with data set, value, and select this, okay. Maybe this is the table, maybe that's what number again. So okay, so it's converted into, okay, it's converted into value. So using value function also you can convert text to number, okay. Using date value function, you can convert your, if your date is in a text format, so you can convert into that into date format, okay. And here suppose this is your date,
Okay, this is your date, and first you check what is the type of this date. So you can select this, and you can check this. It's returning the 1. It means this is the date. Still this is a date format. So let's change that date into a text format, then I will show you. Okay, so what is a text to column, and then fixed length, then no nothing, then date, sorry, text, and finish. So what I did, I converted this into text format. So as you see, it's now here, to place of 1 it's changed by 2. Okay, means the date converted as a text. Now I want the date as a date format, not in a text format. So what we can do, if from here अगर आप यहाँ से चेंज नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ से भी चेंज नहीं हो रही है डेट, ओके, सो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर हम आएंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर से टेक्स्ट टू कॉलम में जाएंगे, टेक्स्ट टू कॉलम में जाएंगे, यहाँ से आने के बाद हम नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, और यहाँ से हम डेट, अब जैसा भी फॉर्मेट चाहिए आपको, डे पहले चाहिए, मे मंथ पहले चाहिए, जो भी पहले चाहिए, हमें मंथ पहले चाहिए, डे बाद में चाहिए. तो अभी देखो, अभी ऐसा है, ठीक है ना, डे पहले, मंथ बाद में है, और ईयर बाद से, बट हमको अब मंथ पहले चाहिए, तो वो सारा चेंज कर देगा. सी, ऑल द मंथ्स केम बिफोर. ओके, इट्स चेंज बाय डेट आल्सो. ओके, टेक्स्ट टू कॉलम, next, next, but it seems like it's dmy only. No, myd. Oh, why it's not applying with whole? Okay, maybe some problem in my excel, don't know. It's automatically changing, converting, but no worry, I will do it. Okay, you can see all date is converted again in a date format. You can see now it's a 1. So these two, first you can use this format cell, first you can use this, okay, format cell for converting your all data types, whatever you want you can convert. And next, if you want to convert the number into text, you can use this, okay, text to column. When you use the text to column, it can convert number into text and in date format also. Okay, and second alternative method is value function and date value function. Okay, value function can convert your text into number, okay, and date value function you convert, if your date has a text format, so it's convert into a date format. Okay, so मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि पहला अल्टरनेटिव मेथड है टेक्स्ट टू कॉलम. टेक्स्ट टू कॉलम से हम क्या कर सकते हैं, नंबर से टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और डेट टेक्स्ट, अगर डेट टेक्स्ट है टेक्स्ट फॉर्मेट में, तो उसको डेट में कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी. ओके, सेकेंड अल्टरनेटिव मेथड ये है, कि वैल्यू फंक्शन, ये क्या करता है, टेक्स्ट को नंबर में कन्वर्ट कर देता है. और डेट वैल्यू फंक्शन क्या करता है, ये अगर डेट टेक्स्ट है तो उसको डेट में कन्वर्ट कर देता है. ठीक है ना. सो ये हमारे डाटा टाइप्स को चेंज करने के मेथड्स होते हैं. ठीक है, अब हम लेके चलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट स्टेप में डाटा क्लीनिंग के, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डाटा क्लीनिंग, विच व्हाट वन, हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज. ओके, चलो अब हम देखते हैं कि हम क्यों इसका यूज करते हैं, क्यों हमको नीड है मिसिंग वैल्यूज हैंडल करने के लिए. ओके, हमको क्यों नीड है मिसिंग वैल्यूज की, हम मिसिंग वैल्यूज हम हैंडल करें. ठीक है, सो सबसे पहले हम एक चीज़ देखते हैं, एक चीज़ समझते हैं एक एग्जांपल से. सपोज you are using your data in some machine learning algorithm and many more things. Okay, so जब वो तुम्हारा डाटा सेट मशीन लर्निंग एल्गोरिथम के लिए रिक्वायर्ड हो रहा है, उसमें यूज करना है, सो सपोज तुम्हारे जो कॉलम्स है उसमें बहुत सारी वैल्यूज मिसिंग है. ठीक है ना, तो जो फंक्शन और मॉडल तुम यूज करोगे मशीन लर्निंग में, तो मे बी वो फेल हो जाए, मे बी वो वर्क नहीं करे, क्योंकि उसको होल डेटा चाहिए. ठीक है ना, सपोज ये आपके पास डेटा है, यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक वैल्यू है ही नहीं बाथरूम्स की, तो जब वैल्यू ही नहीं है तो वो प्रॉब्लम करेगा ना. और बाकी कॉलम्स में वैल्यू है उस जगह, बट इस कॉलम में उस जगह वैल्यू नहीं है, तो वो जो मिसिंग वैल्यूज हैं वो प्रॉब्लम आकर करेंगी. ठीक है ना, तो इसीलिए हमको मिसिंग वैल्यू हैंडल करना पड़ेगा, या तो वो कॉलम हटा दो या तो वो वैल्यू फिल कर दो, दो ही ऑप्शन होते हैं हमारे पास. ठीक है ना, तो एक एग्जांपल लेके चलते हैं, सिंपली समझना उसको. Imagine you're manager of a grocery store. Okay, suppose you are a manager of grocery store, you have one grocery store. Okay, and you want to understand the preference of your customer to improve your inventory management and marketing strategy.
Okay, you collect data and the items purchased by each customer during the visit to your store. In this scenario, we build predictive model to forecast future customer behavior or segment customer into different groups. Based on their shopping preferences, you may use machine learning algorithm to predict which product a customer is likely purchasing next or identify high value customer segments or the targeted market campaign. Okay, suppose जब तुम्हारे पास वो ग्रोसरी शॉप है, बहुत सारे कस्टमर तुम्हारे ग्रोसरी शॉप से आते हैं, लेके जाते हैं, तुम उसको और भी इम्प्रूव करना चाहते हो, तो तुम ये देखोगे कि क्या एनालिसिस करके तुम देखोगे कि क्या चल रहा है तुम्हारे स्टोर में, कैसा क्या मार्केटिंग हो रही है, क्या सबसे ज़्यादा परचेजेस किया जा रहा है। तो उसके लिए तुम डाटा कलेक्ट करोगे। उस डाटा में सपोज कहीं कहीं पर वैल्यू मिसिंग है, तो मे बी वो अच्छे से प्रिडिक्ट नहीं कर पाओ कि तुम्हें नेक्स्ट क्या करना चाहिए, अच्छे से वो एनालिसिस मिले ही नहीं तुमको, ठीक है ना। तो ये चीज़ होती है, ठीक है। अगर मिसिंग वैल्यू तुम हैंडल कर लोगे, तो जो तुम मैथमेटिकल फंक्शन वो सब चीज़ें यूज करते हो, तो वो भी बहुत अच्छे से वर्क करेंगे। अगर मिसिंग वैल्यू होंगी, अगर वहाँ पर वैल्यू ही नहीं है, तो वो मे बी वर्क नहीं करे ज़्यादा, ठीक है, और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, ठीक है। अब हम देखते हैं किस टाइप की मिसिंग वैल्यू अकर होती हैं, ठीक है। मिसिंग वैल्यू तो होती है, बट किस टाइप से होती है वो हम देखते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मिसिंग वैल्यू इज अकरिंग ड्यूरिंग एनालिसिस। सो फर्स्ट टाइप की मिसिंग वैल्यू होगी ब्लैंक एंड नल वैल्यूज। ओके, इस टाइप से अगर हो तो वो एज ए मिसिंग वैल्यू रीड करी जाएगी। स्पेशल कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर मीन सपोज कॉलम है 1 2 3 4 लिखा है एंड वन प्लेस एट द रेट आ जाए, ठीक है ना, तो वो हमारा एक स्पेशल कैरेक्टर है, जो कि वो एज अ नंबर में वो एट द रेट कहाँ से आ गया, वो नहीं होना चाहिए, तो वो भी एज अ मिसिंग वैल्यू रीड किया जाएगा। देन रैंडम नंबर, रैंडम नंबर मीन्स सपोज एज है, एज कॉलम है, ठीक है ना, एज कॉलम है, एज कॉलम में सपोज वहाँ पर एज है हमारा 1 से लेके 99 तक एज दिया हुआ है सबका, ठीक है ना, बट अचानक से 150 ईयर्स आ जाए और 200 ईयर आ जाए, तो एक नॉर्मल पर्सन 200 ईयर इम्पॉसिबल। ओके, सो वो एक इस पे एक रैंडम वैल्यू आ गई, रैंडम नंबर आ गया 1000 आ जाए, तो वो एक रैंडम वैल्यू है। ईयर एज में 1000 कहाँ से आ गया, तो वो एक रैंडम वैल्यू है, ठीक है ना, तो ये भी एज अ मिसिंग वैल्यू अकाउंट किया जाएगा। और वी कैन से आउटलायर्स, आउटलायर्स, आउटलायर्स हम उनको कहते हैं, जैसे सपोज हमारे पास एक सैलरी कॉलम है, ठीक है ना, सैलरी कॉलम है, सबकी सैलरी है 20,000 30,000, मतलब सैलरी हमारी 20,000 से लेके 40,000 के बीच में है सब लोगों की, बट एक पर्सन है जिसकी मंथली सैलरी दिखा रही है 5 लाख, ठीक है ना, 5 लाख, तो ये हमारा आउटलायर होगा। मतलब वो वैल्यू जो सारी वैल्यू से बहुत बड़ी है, बहुत ज़्यादा बड़ी है, लार्ज वैल्यू है, तो वो हमारा आउटलायर होता है, ठीक है ना। ये समझ में आएगा। तो हमारे 3 4 टाइप से होते हैं हमारे पास, कि हम देख सकते हैं कि ये मिसिंग वैल्यू हुआ है। ब्लैंक और नल वैल्यू, मतलब कुछ है ही नहीं वहाँ पर, देन स्पेशल कैरेक्टर आ जाए, रैंडम नंबर आ जाए और आउटलायर्स आ जाए, तो ये हमारे होते हैं, ठीक है ना। सो चलो आज हमने इतना बता दिया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में कि हम उसको मिसिंग वैल्यूज को हैंडल कैसे करते हैं, ठीक है ना। हम कैसे रिकॉग्नाइज करें कहाँ पर ब्लैंक वैल्यू है, कहाँ पर स्पेशल कैरेक्टर है, कहाँ पर रैंडम नंबर है, कहाँ पर आउटलायर्स है, और हम उसको हैंडल कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें हम कल के लेक्चर में देखेंगे। ओके, सो इस डाटा सेट को हम अटैच कर देंगे, आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस करना। ओके।